So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today with us Chris, and Chris will join her journey. She will describe, she did bachelor's and master's in India, especially from Delhi, and how after she graduated from India and how she come to Australia, she completed PhD here in Australia and she got PR. So basically she is from a biotechnology, and biotechnology in India, is like booming. A lot of people are doing bachelor's in the like technology, BTech or MTech, BSc, MSc. So most of the colleges nowadays in India, they are offering this course. And many people are requesting me about this biotechnology, what is the scope in Australia and how they can come here. And after PhD, what is the scope for, those kind of things we will discuss all the questions with Chris. So Chris, can you please introduce yourself? Hello, Akram. Good evening. How are you doing? I'm good, thank you. How are you? Not too bad, Akram. So, to all of the people and your listeners, a very good greetings of the day and namaste. I am basically Dr. Chris Malika Bhadra. I was born and raised in Delhi, India. I did my bachelor's in technology from Heritage Institute of Technology, which is in West Bengal. That was in biotech. And after that, I finished my master's of technology in biomedical engineering from NIT Rourkela. Okay. And that I was anyway applying to a lot of places for PhD. I had an offer from NIT itself for a position in ceramic engineering for PhD. But by that time, this scholarship came through, and Swinburne University in Melbourne offered me a full 100% government scholarship with tuition fee waived off. So, and I always wanted to, move abroad for pursuing my degree. So I just jumped on that offer. I landed in Melbourne in March 2013. And my PhD was in the specialization of nanobiotechnology. I graduated in 2017. After that, I did a few industrial projects, which was a mix of nanobiotech and material sciences. But now, as of now, I'm working with V-Line organization, which happens to be a government rail service in Victoria, Australia. So that's my short journey so far. Actually, you did your bachelor's and master's. So during that time, you have some experience, like any research or any publications or something? जब मैंने बीटेक की थी, बीटेक के 4 साल में तो उतना रिसर्च उतना फोकस होता नहीं है, बट एमटेक in I think in most of the NITs the rule is अगर आप प्रॉपर 2 साल का एमटेक कर रहे हो तो लास्ट ईयर इट हैज रिसर्च प्लस आपका जो कोर्स वर्क चलता है. तो रिसर्च का एक टॉपिक किया था, एंड दैट टॉपिक वाज काइंड ऑफ फॉलोड इनटू माय पीएचडी. लेकिन वो आर्टिकल उस तरीके से निकला नहीं था बिकॉज कोर्स वर्क इतना रहता था, रिसर्च इतना रहता था. बट वो कंटिन्यूएशन में फिर बाद में मैंने वो पब्लिश किया था जब मैं यहाँ फॉर्मली आ गई थी. So that was what was going on while I was doing my masters. So I can say that you bachelor and master, there is no publication, so we can you just a fresher was looking a scholarship and you just got okay. तो उसके बाद आप लोग बेसिकली अभी क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, अभी तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है. अभी अगर आपके पास कुछ पब्लिकेशन है तो बेटर है, आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा अगर एप्लीकेशन है ना. तो अभी डे बाय डे क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया में लोग आते हैं, तो अभी उस टाइम पे शायद इतना नहीं हो, मगर ये बहुत ही मगर फिर भी जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी मेरिट अच्छी थी, आपके मार्क्स अच्छे थे अंडर ग्रेड में और आपके पोस्ट ग्रेड में, एक्स्ट्रा करिकुलम एवरीथिंग विल बी सी तो अगर ऐसा कुछ था तो किसके केस में वही है कि उनके पास कोई पब्लिकेशन तो नहीं थी, मगर इनको जो है पीएचडी में एडमिशन मिल गई थी फुल्ली फंडेड. तो आपने मतलब कैसे अप्लाई किया था? अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करने का मेथड मेरे लिए एक ही है कि आपका जो फील्ड है आप हर यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन जाके विजिट करें. उनके हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में लैब्स होती हैं, आप लैब्स का काम देखें, प्रोफेसर्स का पेज देखें. जिस प्रोफेसर का पेज आपको लगता है कि हाँ मेरे से सिमिलर है, आप उनको पर्सनली ईमेल करें. लेकिन ईमेल करने के पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपका सीवी अपडेटेड होना चाहिए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस जैसा अक्रम आपने पहले बोला अगर है तो ग्रेट, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हम एसओपी कहते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं. वो आप जो ओवरसीज प्रोफेसर्स हैं उनको अगर आप सिर्फ ये लिखे कि मुझे आपके साथ काम करना है, दैट्स नॉट एनफ. वो आपसे एक स्टेप और मांगते हैं कि आपको काम करना क्या है.
और वो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपने जब मुझे ईमेल किया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, मेरे लैब में क्या काम चल रहा है, मेरे रीसेंट पब्लिकेशंस क्या हैं, ये आप देख के मुझे ईमेल कर रहे हो, राइट? सो आई वांट टू सी दैट वन स्टेप ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क ऑन योर साइड, कि व्हाट वर्क, और in other words, what extra contribution will you add to my team if I take you in my group? तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक की एलिमेंट है अक्रम अप्लाई करने के लिए। वो आप जितना प्रिसाइज टू द पॉइंट अपडेट कर, ये नहीं कि आप 10 पेज लिख रहे हैं शॉर्ट, लेकिन उसमें एग्जैक्ट आइडिया प्रोफेसर को मिलना चाहिए कि इस बच्चे ने एक तो मेरा काम देखा है, और इसको थोड़ा, ऑब्वियसली आप प्रोफेसर के लेवल पे जाके तो अपना रिसर्च प्लान बना नहीं सकते, लेकिन आपको ब्रीफ उनको इम्प्रेस करना चाहिए, और उनको ना ये हार्ड वर्क अच्छा लगता है। जो ऑस्ट्रेलिया में आके देखा, एक स्टार्क डिफरेंस है वर्किंग मेथोडोलॉजी में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में हम थोड़े ना लेड बैक होते हैं कि प्रोफेसर हमें बताएंगे, प्रोफेसर करके देंगे, ये चीज बिल्कुल। यहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आके मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर मुझे ये करना है, प्रोफेसर मुझे वो करना है, फिर वो आपको आगे गाइड करेगा कि कितना पॉसिबल है, कौन से लैब में है। आपको ये स्पून फीडिंग यहाँ नहीं मिलेगी, और अगर आप उस एटीट्यूड से यहाँ रहते हैं तो वो आप बैक सीट ले लोगे उनकी नजरिए में कि इस स्टूडेंट को बस स्पून फीडिंग चाहिए। तो ये थोड़ा ना प्रोएक्टिविटी बहुत काम करता है। जब भी आप अप्लाई करें, प्लीज इंश्योर कि आप लोगों का जो एसओपी है वो अपडेटेड होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपने आप से भी आइडियाज ऐड करेंगे, वो सारा एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन दे वांट टू सी दैट यू पुट इन योर एफर्ट, दे वांट टू सी योर हार्ड वर्क इन दैट डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो देखो कृष्ण ने बताया कि उन्होंने कैसे फाइंड किया, मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल जीरो पे, आपको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप गूगल पे जाइए, फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं ऑस्ट्रेलिया में, फिर उनको 1 बाय 1 उनकी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। और जिस भी आपके सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी प्रोफेसर वहाँ पे काम कर रहा है सेम आपकी फील्ड के अंदर, तो आप उनको एक अच्छा सा एक ईमेल कीजिए, और उसके अंदर फिर आप अपना एसओपी, अपना सीवी अटैच कीजिए। एसओपी अगर आपने नहीं भी बनाया है तो अभी भी आपने सीवी अटैच कर दीजिए, फिर शायद वो प्रोफेसर आपको बताएंगे कि आप, अच्छा आपको जो है एक एसओपी बनाना है, या उसको हम रिसर्च प्रपोजल बोल सकते हैं कि आप रिसर्च चाहिए, एक प्रपोजल बनाइए। तो वो बहुत लेंदी नहीं हो, एटलीस्ट 1 से 2 पेज का भी हो, तभी भी चल जाएगा। उनको पता है कि इस लड़के ने जो है काम किया, स्टूडेंट ने पूरा काम किया है। तो आप जो प्रोफेसर की जो पूरी एक जो पब्लिकेशंस होती हैं, उसको ग्रांट मिलती है, उसके अंदर कौन कौन से बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, तो उन साथ के टॉपिक्स दिए होते हैं, तो आप उसके रिलेवेंट ही आप अपनी बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बंदा जो है बात कर रहा है एक चीज की और आप बात कर रहे हो सी चीज की, तो वो उसका एरिया ही नहीं है। तो जो उसका एरिया है, आपके उसी के एरिया में आप बताओगे कि आपका भी इंटरेस्ट है, आपने ये काम किया था अंडर ग्रेड में या पोस्ट ग्रेड में, कुछ पब्लिकेशन है तो बेस्ट है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो आप अपनी कहानी बनाएंगे कि मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो फिर वो जो है आपको बताएंगे। तो ये प्रोजेक्ट आप जी, एक प्रोफेसर आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने उनको ईमेल की, फिर उन्होंने आपको बताया। लकीली अकरम माय प्रोफेसर वाज वेरी वेरी कॉर्डियल। मतलब कुछ लोग, एक मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगी, मेरे प्रोफेसर ने एनआईटी के टाइम कहा था कि अगर दिन में तुम सिर्फ 5 ईमेल कर रहे हो, कि 5 के ईमेल के रिप्लाई आएंगे। अगर आपको बाहर जाना है, इंश्योर करें कि आप डेली एटलीस्ट 50 ईमेल्स लिख रहे हैं। 50 जाएंगे तो शायद आपको 10 रिप्लाईज वापस आएंगे। तो वो चीज मैंने और ध्यान की थी। तो जो मेरी प्रोफेसर थी, आफ्टर 1 और 2 डेज, और उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया था कि तुम्हें अगर स्कॉलरशिप चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्रपोजल एक्सेप्ट होना और दूसरा होता है स्कॉलरशिप एक्सेप्ट होना। आप अपने पॉकेट से रिसर्च करने तो बाहर नहीं आ सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये किसने बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट जस्ट मास्टर डिग्री के बाद, मगर जो स्कॉलरशिप का जो एक राउंड होता है बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, कोई मैथमेटिक्स वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई मेडिसिन है, तो सारे लोगों की जो स्कॉलरशिप की जो राउंड होती है वो एक साथ होती है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉप पे होते हैं, उनको मिल जाती है, बाकी नीचे वालों को फिर नहीं मिल पाती है, क्योंकि पीएचडी की फीस इतनी है ऑस्ट्रेलिया में, लगातार 2-3 करोड़ हो जाएगी अगर हम बताएं तो इंडियन रुपीज में, और वो हम नहीं कर सकते हैं। तो पीएचडी तो आपको स्कॉलरशिप पे ही करनी है। तो यस, 2 तरीके की चीज हो सकती है, या तो फुल्ली स्कॉलरशिप, नथिंग बेटर देन दैट। एक होता है आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, 70% मिल गई, 80% मिल गई, वो भी तो अच्छा ही है ना। अपने पैसों से पीएचडी बाहर करने का तो मुझे कोई सेंस नजर नहीं आता। तो मुझे फिर गाइड किया कि क्रिस तुम एचआर डिपार्टमेंट से मिलो, ताकि वो तुम्हारा स्कॉलरशिप का, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी प्रोफेसर मेरा वो स्कॉलरशिप का तो नहीं देखेंगे। फिर ने मुझे गाइड किया कि ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब
ये था कि स्विनबर्न का जो स्कॉलरशिप का राउंड था, उन्होंने मेरी ग्रेडिंग की, मतलब इनका एक ग्रेडिंग मेट्रिक होता है, उन्होंने मेरे मार्क्स देखे थे राइट फ्रॉम 10th, मेरे 10th में कितने थे, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, अंडरग्रेड के मार्क्स, पोस्ट ग्रेड के मार्क्स जी। और इनके मैट्रिक सिस्टम में मैं जो हमारे आप जैसे अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड के कॉलेजेस लिस्ट करेंगे उनका भी होता है। जैसे मेरे एनआईटी था तो आई थिंक इनके मैट्रिक में एनआईटी का एक अच्छा स्कोर था। ये सब ओवरऑल मिला के आई वाज डीम्ड एलिजिबल टू गेट द स्कॉलरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इंडिया में कहाँ से की है एजुकेशन? इनके पास पूरी लिस्ट है और वो हमें नहीं पता है इनसाइड आपकी क्या क्या रैंकिंग है, मगर इनको पता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आईआईटी से हो या आप एनआईटी से हो, कोई एम्स से है, तो उनको पता है कि भाई ये बहुत टॉप कॉलेज है इंडिया के अंदर, और अगर बच्चा यहाँ से आ रहा है तो उसको वो डेफिनेटली देंगे। और अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर आप समझ जाइए, जैसे ना, तो उनकी अपनी एक देखिए अकरम, यहाँ पे एक चीज है कि हर कोई आईआईटी एनआईटी तो नहीं कर सकता, हमारी पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप मान ले इससे किसी टॉप टियर 3 कॉलेजेस में है, आपको, मैं पर्सनली जितना कह सकती हूँ कि अगर आपको पीएचडी करना है, आपको बैचलर के सेमी प्री फाइनल या फाइनल ईयर से अपना दिमाग सेट करना पड़ेगा कि मुझे एमएनसी में जाना है, मुझे आरएनडी में जाना है, या मुझे ओवरसीज पीएचडी करनी। बिकॉज आप जो सीजीपीए है वहां से आपकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। बेशक आप आईआईटी एनआईटी में नहीं है, और ये चीज मैं अभी हर किसी को कहती हूँ कि वो एक वाइल्ड चेज है जिसपे हम भागते रहते। आप नहीं, अगर आप नहीं है तो आपको इंश्योर करना है कि आपका सीजीपीए अच्छा हो, तो भी वो बैलेंस आउट हो जाता है। बिकॉज ओवरसीज यूनिवर्सिटीज में आप देखें ना, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, सिर्फ इंडिया तो नहीं है, पाकिस्तान है, साउथ एशिया से तो लोग आते ही रहते। तो हाउ stand out is by ensuring either your grades are exceptional or your college is exceptional. हाँ, दोनों का mix है तो nothing better than that. तो CGPA and what I'm trying to say is you have to be proactive. ये नहीं कि आप masters के final year में decide करें कि आप मुझे PhD करना है, it's a bit too late. आपको थोड़ी पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे आगे के 5 सालों में where do I want to see myself. ऐसे करेंगे तो आपको बहुत easy हो जाता है प्रोसेस करना। ये अभी और इंडिया में क्या हो गया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर के बाद बोल रहे हैं आप जॉब नहीं लग रही, बोले यार चलो पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी के बाद चलो कुछ प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं, किसने कहा कि आपको, मतलब अगर आप एटलीस्ट मास्टर में आ गए हैं तो ईयर 1 से ही आपके दिमाग में चाहिए कि मेरे को फॉरेन में जाना है, तो आपको जो ग्रेडिंग है अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। जरूरी नहीं कि आपका कॉलेज अच्छा हो, डजंट मैटर, मगर आपके एटलीस्ट जहाँ से भी आपने कोई भी डिग्री किया है वो आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये जो पीएचडी का इस चीज से कर लेना कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है अकरम, मेरे लिए थोड़ा सा ये इट्स काइंड ऑफ नॉट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्स कि मुझे नौकरी नहीं मिली, चलो पीएचडी। जिन लोगों ने पीएचडी नहीं की उनके लिए मेरा ये मैसेज, जैसे आपको पता है अकरम, यू आर गोइंग थ्रू दिस इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। पीएचडी एक इंसान की लाइफ बदल देता है। आप एक डिग्री को 3 साल दे रहे, मतलब मेरी सुपरवाइजर कहती थी कि in these 3 years of your journey you are married to your lab. उस डेडिकेशन आपसे एक्सपेक्टेड होती है। तो जस्ट ऐसा कह देना कि अरे नौकरी नहीं मिल रही चलो पीएचडी कर लेते, टू मी दिस इज डिसरिस्पेक्ट। बिकॉज हमने, जो लोग हम यहाँ कर रहे हैं, कर चुके हैं, हमने अपना खून पसीना पता नहीं क्या क्या दिया इन 3-4 सालों में, तब जाके हम कहीं पहुंचे। तो अगर आपको करना है, डोंट थिंक कि नौकरी, इसको सब्स्टिट्यूट ना रखें इसको। मतलब आपका अगर इंटरेस्ट है, पैशन है, तभी आप पीएचडी में आइए, वरना आप कोई भी जॉब मिल जाएगी आप उसमें चले जाएंगे। क्योंकि पीएचडी का मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, इवन एक स्टूडेंट को जानता हूँ, उसको तो ईयर 1 के बाद वापस चला गया था क्योंकि वो आगे परस्यू कर नहीं पाया है ना, वो बस उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, उसका एडमिशन भी हो गया था, फिर भी क्योंकि यहाँ पर हर साल आपका असेसमेंट होता है एवरी ईयर, है ना, कि आपका जो है कि आप ऑन द ट्रैक है नहीं। अगर कमेटी ने अगर आपको रिकमेंड नहीं किया तो फिर आप सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं होगे या थर्ड ईयर में आप प्रमोट नहीं होगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाएगी, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा पैशनेट है, आप मेहनत करके, तो इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ही इजी है, मैं कहूँगा पीएचडी। मगर अगर आप सोचेंगे मुझे कुछ करना नहीं है और फ्री में पीएचडी मिल जाए, तो यहाँ पीएचडी ऐसे नहीं मिलने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और अगर पीएचडी के बाद ऑस्ट्रेलिया तो नहीं अकरम, कहीं भी नहीं, क्योंकि मुझे याद है मैंने पोस्ट डॉक के टाइम एक इंटरव्यू दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के एक लैब में। उनका काम मेरे बहुत सिमिलर था, प्रोफेसर वाज वेरी फेमस। एक का इंटरव्यू हुआ था जिसमें 30 मिनट्स तो उनके पोस्ट डॉक के स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की थी कि
काम है जस्ट। और आज की डेट में मुझे लगता है वो रैशनल भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ एस्टैब्लिश्ड है। उनको भी वाइब होना चाहिए ना कि ये स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहा है, ये कितना कमिटेड है। तो दैट इज लेवल। आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप यूके, जर्मनी, यूएस कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, लेवल ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंपटीशन इतना ही स्ट्रांग है। तो आप बना के चलना है कि करना है कि नहीं करना। हाँ, और पीएचडी में क्या है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या होता है, देयर इज ए लिमिटेड टाइम, यू हैव टू फिनिश इन पीएचडी 3 years, मैक्सिमम 3.5 years. Local can be like 5 years, 6 years, 7 years. For them, they are not paying, because you are international student, university are paying your fees, university are giving you the monthly stipend, so you have to be on track. If you are not on track, it will be like 4-5 years. Yeah, तो ये आप कर नहीं सकते बेसिकली, अगर आपने ऐसा किया तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है फॉर यू। करने का स्कोप ही नहीं है ना, बिकॉज मेरे टाइम पे अक्रम क्या होता था, एवरी 6 months वो असेसमेंट फॉर्म, एक फॉर्म इमिग्रेशन के पास भी जाता था, बिकॉज उनको भी तो ट्रैक रहे ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने को, बिकॉज वो वीजा में एक रिक्वायरमेंट होता है कि यू मीट योर कोर्स रिक्वायरमेंट। यस यस यस। तो आप इमिग्रेशन के साथ मेस तो नहीं करना चाहते, चाहे आप कहीं भी रहें। सो प्लीज, इफ यू आर कमिंग फॉर पीएचडी, प्लीज decide way in advance and dedicate your 3 years. Be ready to dedicate your 3 years to this course. Yes, yes, yes. And जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पैसे मिलते हैं, क्या इट इज एनफ टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो मैं कहूँगा आई थिंक इज मोर देन एनफ, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। आजकल तो 35,000 तक हो गई है, पहले तो बहुत कम हुआ करती थी। मेरे टाइम पे ये 320। प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी मैंने आपको कट कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ कैसे लीड करना चाह रहे हैं। मैं एज ए स्टूडेंट, यस, आप स्टूडेंट आ गए, ऑब्वियसली हर कोई फन करता है, हमने भी किया है, लेकिन आप हर फ्राइडे नाइट पार्टिंग कर रहे हैं, एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली द अमाउंट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। लेकिन अगर आप नॉर्मल अच्छे से भी लाइफ लीड हो जाती है स्टाइपेंड से, हाँ एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगी, बट दे इंश्योर कि आपको जितना वो दे रहे हैं उसमें आपका घर का खर्चा, रहने का खर्चा, एक डिसेंट लाइफस्टाइल एज अ स्टूडेंट आप आराम से निकाल सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। Even if you have a small family, your wife or maybe 1 or 2 kids also, because I know some of my friends, they are from like Sri Lanka, Pakistan, तो उनके बच्चे हैं और पूरा जो है कंप्लीट किया है उन लोगों ने भी। तो PhD के लिए how many hours we need to work, do you think this is? It's a very personalized question अक्रम। like मेरे टाइम पे मैंने ऐसे किया था, फर्स्ट ईयर जब मैं सिर्फ 2013 में यहाँ थी, किसी को मैं जानती थी नहीं थी, बिकॉज मेरे यहाँ कोई फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली कुछ भी नहीं है। पहला साल मैंने बस लैब घर लैब किया है। देयर वाज अ पॉइंट कि 2 दिन मैं पूरे रात लैब में भी थी फॉर माई एक्सपेरिमेंट्स। फिर अगले साल आई रियलाइज कि ऐसे करूंगी तो दिमाग विल गो क्रेजी, आई नीड सम। तो आई स्टार्टेड गोइंग आउट, सोशलाइजिंग, एंड देन आई हैव लर्न डांस आल्सो, सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग। दैट हेल्प्ड मी एनॉर्मसली। तो आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स कि आप एक पैशन रखें जो आपको ना वीकेंड में वेंट आउट करने के लिए हेल्प करे, चैनलाइज करने के लिए। दैट हेल्प्स ट्रेमेंडसली। आप सारा टाइम लैब घर नहीं कर सकते, वो आपको दिमाग पागल कर देगा। एंड उसके साथ पीएचडी मेरी टाइम पे हो गई थी, मतलब थीसिस लिखने के 6 महीने आई डिड नॉट परफॉर्म, तब सिर्फ एकदम लैब घर वाले मोड पे आ गई थी। लेकिन बीच के 2 साल आई परफॉर्म्ड, आई सोशलाइज, नॉर्मल हो गया था। मतलब पहले के जो 2 साल या थोड़ा इजी रहेगा लास्ट या जी। आप प्री प्लानिंग करें, लाइक हमारा था मंडे को आके आप पूरा वीक प्लान करो, मुझे किस दिन क्या करना है, अगले क्या करना है। अगर आप प्री प्लानिंग करके चल रहे हो, आराम से काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हाँ, even supervisor also ask, every month you have to give, what you are going to do in the next month, इस month में आपने क्या किया, आगे आप क्या करने वाले हो, तो उनको भी पूरी एक रिपोर्ट देते हैं आप लोग। अच्छा, चलो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है ऑस्ट्रेलिया में? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ जॉब लग सकती है पीएचडी के बाद, या मास्टर डिग्री कितनी किया है बायोटेक्नोलॉजी? अक्रम, बायोटेक का स्कोप तो अच्छा खासा है, बिकॉज अभी आजकल बहुत लैब्स आ रही हैं, बहुत R&D फर्म्स ओपन हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद देयर हैज बीन दिस बूम वेयर दे नीड पीपल इन द मेडिकल इंडस्ट्री। लेकिन वो ये कि आपको थोड़ा बहुत अपना CV अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा टेलरिंग करने की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं। यहाँ पे मैंने जो सीखा, यहाँ पे हमेशा हार्ड स्किल्स वोंट गेट यू द गेम। आपको यू हैव टू बी
ready with your soft skills also. You need to learn how to interact with people in a good way. तो ये सब स्कोप हर जगह हर चीज का होता है अकरम. इट्स ऑन मी कि मैं कैसे आई स्टार्ट हंटिंग फॉर द रोल. ऐसा नहीं स्कोप है ही नहीं. यूएस में जितना है यहाँ भी इतना ही है. दिस इज बूमिंग. आपको बस अपना सीवी अपडेट करें, अपना काम टेलर करें. ऐसा नहीं कि मैंने एक सीवी बनाया है तो हर जॉब के लिए मैं एक ही सीवी भेज रहा हूँ. यस. Every job requires certain different parameters to be met. आपको वो key selection criteria जो ये लोग देते हैं, that is the key. वो ध्यान से पढ़ें, उसको टेलर करें फिर अपने सीवी के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आपको जॉब मिल जाएगा. हो सकता है आपको पहले 1-2 छोटे मोटे जॉब करने पड़ सकते हैं टू गेन दैट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. फिर करेंगे तो आई एम डेफिनेट कि यू विल गेट अ फुट इन द डोर. इतने लोग कर रहे हैं. अकरम इज ऑल्सो देयर. ही विल बी अ गुड गाइड फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल. एक्चुअली यू नो आफ्टर पीएचडी जॉब तो आपको मिलनी ही मिल रही है. ये हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए ना इनिशियल में, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो मे भी कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी. और तो धीरे धीरे आपका जॉब की 100% है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी कोई बात नहीं है. अब बेसिकली अब हम बात करें कि ये जस्ट साइंस की डिग्री मान के चलें कि भाई पीएचडी साइंस में किया है आपको तो जॉब मिल जाएगा. दैट्स इट. तो क्या टू मच नॉइज वो आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा. जस्ट मेरा लैपटॉप मेरी तरह बुढ़ा हो गया. ओके आई थिंक ओके. तो अच्छा फिर अब हाउ यू गॉट योर पीआर आफ्टर योर पीएचडी? व्हाट वाज योर जर्नी? सब मैं हर स्टेज से गुजर चुकी हूँ. पहले तो आई केम बाय स्टूडेंट वीजा. उसके जब मेरी पीएचडी फाइनली खत्म हुई 2017 में व्हेन आई सबमिटेड, तब मेरे सीनियर्स ने कहा तुम अभी फाइल कर दो. There used to be a stream called life scientist. In fact, most of my seniors got it through that. वो एक PR का पाथवे होता था. जब मैंने सारा कुछ सबमिट किया, सब कुछ हुआ, अगले ही दिन the government introduced changes, जबकि that pathway was completely eliminated. कि इस pathway को exist मतलब recognize ही नहीं करेंगे for PR. Okay. For 2-3 days I was completely shattered. मुझे लगा अब तो बोरिया बिस्तरा पैक करके I have to go back home. Yes. But fortunately one of my colleagues husband was a migration agent. मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा let's take it one step at a time. उन्होंने पहले मुझसे ग्रेजुएट वीजा दिलवाया जो 485 वर्क वीजा होता है. पे I was there for 2-3 months. इसी बीच में the government reintroduced a new list of occupations which fortunately had biomedical engineer as a pathway for PR. तो तब उन्होंने कहा कि क्रिस डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स अप्लाई थ्रू योर मास्टर्स डिग्री का जो भी आपका एक्सपीरियंस है. एंड दिस कम्स अंडर इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया. सो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, स्किल असेसमेंट जो बेसिक होता है कि वो आपको देखते हैं वेदर और नॉट यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट. उन्होंने फिर स्किल असेसमेंट को आई वाज सक्सेसफुल. फिर इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है, आपको CDR बनाने होते हैं, confidential data reports ऐसा सब कुछ. Basically there are 3 documents that require them to see your work experience कि आपने डिग्री में काम किया क्या है. वो 3 बनाने थे. Then everything was submitted to Engineers Australia. Luckily मुझे PR मिल गया था in 1.5 months time. ठीक है, ये तो थी कैसी कहानी PR की, बिकॉज यू नो ये थोड़ा सा ओल्ड कहानी थी. अभी राइट नाउ क्या चल रहा है 2021-2022 में कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने न्यू PR इंट्रोड्यूस किया है पीएचडी होल्डर्स के लिए. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल टैलेंट वीज़ा. और ये वीज़ा बहुत ही फास्ट है. बेसिकली 1 वीक में मिल सकता है आपको, 2 वीक में भी मिल सकता है, 1 महीने में. तो मेरे को भी यही वीज़ा मिला है बेसिकली, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा. तो अभी देखो तो मतलब 2 चांस आपके पास. आप GTI भी अप्लाई कर सकते हो, और जो नॉर्मल वीज़ा है 190, 491, 189, अगर आप उसमें से भी किसी ऑक्यूपेशन में आप आते हो तब आप वहाँ से भी आप जो है PR मिल सकता है. तो अगर आपको PR हो जाती है तो जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इवन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कोई ना कोई मिल जाएगी. और एक बात इसमें होता है कि आप जैसे PhD कंप्लीट करेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक वीज़ा होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा बोलते हैं. 485 वीज़ा होता है. तो वो 4 साल का वीज़ा मिलता है PhD होल्डर के लिए. तो 4 साल मोर देन एनफ होते हैं. उससे पहले ही आपको PR मिल जाएगी और फिर जो है आपका हो जाएगा. तो प्लीज एट द एंड आप क्या स्टूडेंट को कुछ बताना चाहेंगे जो हम लोग को लिसन कर देख रहे हैं वीडियोस के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको लाइफ में हर स्टेज में प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. रिएक्टिव से ज़्यादा प्रोएक्टिविटी मेंटेन करें. आपको पहले दिमाग बनाएं कि मुझे आगे जाके 5 साल में करना क्या है. दैट विल हेल्प यू डिज़ाइन योर एंटायर लाइफ.
if you want to come to Australia, it's a beautiful country. And there's one thing, अकरम, मुझे यहाँ कहना है, बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना, रहे ऑस्ट्रेलिया में तुम गई हो, बड़ा रेसिस्ट कंट्री है. प्लीज, ऑस्ट्रेलिया में कोई रेसिज्म नहीं है. मुझे 8-8.5 साल हो गए. आई एम अ सिंगल वुमन ऑफ कलर. मुझे कोई रेसिस्ट अटैक आज तक नहीं हुआ है. दीज आर वेरी ब्यूटिफुल पीपल. आप लोग प्लीज आए, एक्सपीरियंस करें. PhD डेडिकेशन मांगता है. अगर आप रेडी हैं तो PhD इज अ वंडरफुल जर्नी. नौकरी है, जैसे अकरम ने बोला, अभी PR बहुत इजी हो गया फॉर PhD होल्डर्स. बस यू नीड टू मेक योर माइंड एंड पुट दैट लव एंड डेडिकेशन इफ यू वांट टू रियली डू अ PhD. नथिंग इज इम्पॉसिबल. और हाँ, एक पैशन जरूर ओपन रखें, वो आपको हेल्प करता है लाइफ को बैलेंस करने में. Yeah, thank you so much, Chris. Thank you. Bye bye. Bye.